Well, with that big breaking news which is coming in, Congress has slammed the BJP. It says that both AAP as well as BJP have forgotten their promises, that all the promises they made are jhoot ki promises. In fact, let's get you what exactly the Congress has said. See, we are not against Manrega. We are not against midday meal. We are not against food security, right to food security act 2013. In fact, we are not against giving MSP to farmers. In fact, all these things were started by us, but we are against jhoot ki gatri culture. What I mean by jhoot ki gatri culture, we are not against revdi culture, but we are against jhoot ki gatri culture. Both Aam Aadmi Party and BJP, their promises are jhoot ki gatri promises. We are categorically against the jhoot ki gatri culture. We are not against Manrega. In fact, Prime Minister made a fun of Manrega. But during pandemic, Manrega was the scheme which had helped the government. Well, of course, that politics is continuing. But what really can be done to end the freebie culture? And how do you even define a freebie? For that, let me go across to an expert. Vijay Sardana is joining us. He's an agro-legal economic expert, and perhaps he can explain to us, because Mr. Sardana, yesterday, the Supreme Court in its wisdom has said that it's important that we balance out the expectations and the writ which has been set for a welfare state with the losses to the economy. So what really is a freebie? Good afternoon and namaste to all of you. See, I am also one of the interveners in this application, which is there with Supreme Court. Now, let me explain one very simple thing through you to all the audience of this country. Please download economic survey of all the state governments and CAG report of every state government, all are on internet, that exposes how this money is looted and wasted by political parties for their own political agenda. Let me give you 2-3 live examples. Permit me, please. Freebies are those doles which are offered to people, those who are either capable of bearing their own cost or they don't need it. Definitely, taxpayers' money should go to only those who are below BPL, those who cannot afford or physically challenged, unable to earn their livelihood. Definitions are very clear. There is no confusion whatsoever. Unfortunately, if you read the manifesto of Aam Aadmi, India too is concerned at recent developments. वहाँ पे उनके टेस्ट के लिए किया जा रहा है, उनको बिजली, सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली देने के लिए किया जा रहा है, तरह तरह की सुविधाएं देने के लिए किया जा रहा है, सरकारी टैक्स के पैसे से लोगों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है, सरकारी टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से महिलाओं को कहा जा रहा है कि आप बसों में चलें और फ्री चलें, बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है, ये सब जनता के टैक्स के पैसे से हो रहा है। तो दो तरह के मॉडल हैं। एक तरफ जनता के टैक्स के पैसे को दोस्तों के हजारों लाखों करोड़ों के लोन माफ करने पे, उनके टैक्स माफ करने पे खर्च किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जनता के टैक्स के पैसे को करोड़ों लोगों के वेलफेयर पे खर्च किया जा रहा है। ये साफ साफ दोनों मॉडल पे आ गई ये बात। तो पहले मॉडल में हमने देखा, दोस्तवाद मॉडल में, कि कैसे सत्ता में बैठे लोगों ने अपने दोस्तों के, अपने करीबियों के 5 लाख करोड़ के तो उनको टैक्स माफ कर दिए और 10 लाख करोड़ के उनके लोन माफ कर दिए। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों के दोस्तों के हुए, आम जनता को नहीं मिला। आम जनता को इससे कुछ नहीं मिला। इस वाले मॉडल में, दोस्तवाद वाले मॉडल में आम जनता के ऊपर क्या बीतती है, थोड़ा उसको भी देख लें। और मैं उम्मीद करूंगा कि देश की वित्त मंत्री इस ओर भी ध्यान देंगी कि आज देश में अगर कोई किसान अपनी किस्त ना चुका पाए लोन की, तो दोस्तवादी मॉडल की सरकार और उनके समर्थक जाके उस किसान की जमीन छीन लेते हैं, उसकी कुर्की कर देते हैं, उसका घर कुर्की कर देते हैं। अगर किसी किसान ने एक गाय खरीदने के लिए लोन लिया, कोई खेती करने के लिए लोन लिया और वो उसकी एक किस्त ना चुका पाए, उसकी कुर्की कर देते हैं, उसकी जमीन कब्जा लेते हैं। ये है इनका दोस्तवादी मॉडल। दोस्तों के
5 लाख करोड़ के टैक्स माफ, दोस्तों के 10 लाख करोड़ के लोन माफ, लेकिन एक किसान की किस्त माफ नहीं करते इस दोस्तवादी मॉडल में ये लोग। इस दोस्तवादी मॉडल का एक और पहलू है कि ये लोग देश के बच्चों को सरकारी फ्री शिक्षा में यकीन नहीं करते। बात भले ही कितनी करते रहें, लेकिन इनका मॉडल है जमीन पे जो उतरा हुआ है, सरकारी स्कूलों को इतना बर्बाद कर दो, सरकारी स्कूलों को इतना घटिया बना दो कि उसके बाद सारे लोगों को अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पड़े, वो भी इनके दोस्तों को ही होते हैं। और फिर प्राइवेट स्कूल का बच्चा अपने 1 महीने की फीस ना दे पाए तो बच्चा कितना ही होनहार हो, बच्चे का भविष्य कितना ही उज्जवल हो। लेकिन दोस्तवादी मॉडल का नतीजा है कि अगर एक बच्चा अपने 1 महीने की फीस ना दे पाए तो उसको स्कूल से बाहर निकाल देंगे, वो कितना ही गिड़गिड़ाता रहे, माँ बाप गिड़गिड़ाते रह जाते हैं, बच्चा गिड़गिड़ाता रह जाता है, उसका कैरियर बर्बाद होता है। ये दोस्तवादी मॉडल है जिसमें किसी बच्चे के पिता अगर बच्चे की 1 महीने की फीस स्कूल की नहीं दे पाते तो उसकी पढ़ाई का चौपट कर दी जाती है, उसके लिए स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तवादी मॉडल में क्योंकि ये सरकारी स्कूलों पे काम नहीं करते, इसलिए लोग प्राइवेट स्कूलों में मजबूर हैं। दोस्तवादी मॉडल में ये सरकारी अस्पतालों पे, सरकारी अस्पताल बनवाने में, सरकारी अस्पतालों में फ्री दवाई देने में, सरकारी अस्पतालों में फ्री टेस्ट करने में, फ्री कंसल्टेंसी में, इसमें यकीन नहीं करते। बोलते हैं तो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी अगर लोगों को फ्री की दवाइयां बांटने लगी तो। दोस्तों को फ्री के लोन माफ, दोस्तों के फ्री के टैक्स माफ, लेकिन एक आम आदमी का जो मेहनत करके टैक्स दे रहा है उसके टैक्स के पैसे से दवाइयां नहीं मिलनी चाहिए, बोलेंगे ये तो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी। इसलिए इन्होंने सरकारी अस्पताल बर्बाद करके रखे और महंगे महंगे प्राइवेट अस्पतालों पे लोगों को मजबूर किया। और इनके दोस्तवादी मॉडल में, परिवारवादी मॉडल में, आज एक आम आदमी अगर अपने परिवार के किसी आदमी को हॉस्पिटल ले जाता है और ईश्वर ना करे अगर किसी की डेथ हो जाती है, डेड बॉडी नहीं मिलती उसकी जब तक वो 2,50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का, जितने का 5 लाख का बिल है। ये इनका दोस्तवादी मॉडल है कि दोस्तों के 5 लाख करोड़ माफ कर दो, लोन में, टैक्स में, दोस्तों के 10 लाख करोड़ माफ कर दो, वो उसमें रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी इस बात में कि एक आदमी को अच्छा अस्पताल, अच्छा सिस्टम दे दो, उसमें इनको प्रॉब्लम है। आज कल ये भी कहा कि भाई बहुत बर्बाद हो गए हैं, देश बर्बादी की कगार पर हैं, अगर रेवड़ियां दी जाएंगी तो, रेवड़ी कहते हैं जन कल्याण योजनाओं को, फ्री की रेवड़ी कह के मजाक उड़ाते हैं उनका। आज हम दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज को देख लें, दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज को देख लें, मैं अपनी तरफ से कोई लिस्ट नहीं बना रहा हूं, गूगल कर लें। मैडम निर्मला सीतारमण जी को भी मैं कहूंगा, उनके पास भी टीम है, गूगल करा लें। डेवलप्ड कंट्रीज में जिनकी इकोनॉमी को देख के हम कहते हैं कि हम उनकी इकोनॉमी के बराबर जाना चाहते हैं, उनकी इकोनॉमी में, उनकी इकोनॉमी के मजबूत होने का कारण यह है कि वो देश अपने सिटीजन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो देश अपने देश के हर बच्चे को, वहां की राजनीति, वहां की सरकारें अपने देश के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दिलाने में यकीन करती हैं। और खाली बात नहीं करती, वहां के 98, 99, कई देशों में तो 100% बच्चों को शानदार फ्री एजुकेशन दी जाती है 12वीं क्लास तक। इससे देश डेवलप होता है। आप कह रहे हो देश बर्बाद हो जाएगा अगर फ्री में बांट दी शिक्षा, तो आपने फ्री में शिक्षा दे दी तो देश बर्बाद हो जाएगा। कनाडा जैसे 39 कंट्रीज हैं, मैंने गूगल किया था, पर मैं चाहूंगा कि देश की वित्त मंत्री भी अपनी रिसर्च कर लें। दुनिया में 39 देश हैं और सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। हम अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन की कहीं किसी कागज पे लिख के बैठ जाते हैं, उसके बाद व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सरकारी स्कूल बनाने में तो रेवड़ियों पे खर्च हो जाएगा, तो हम कहते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहो, अच्छी एजुकेशन देनी है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ। पूरे देश में इन्होंने सरकारी स्कूलों को बर्बाद करके रखा हुआ है। सोच वही है कि अगर सरकारी स्कूल ठीक कराएंगे, हमें फ्री की रेवड़ी थोड़ी बांटनी है। सीखो देशों से, अगर सीखने की बात कर रहे हो तो। डेवलप्ड कंट्रीज को आप देखो, आज कनाडा, डेनमार्क, ब्राजील, यूके जैसे देश हैं, सब अपने देश के लोगों के लिए 100% हेल्थ केयर फ्री देते हैं। 100% हेल्थ केयर। गूगल कर लें, रिसर्च कर लें, बहुत सारी रिसर्च मिल जाएंगी। दुनिया में बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहां पीने का पानी फ्री दिया जाता है।
बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे हैं जहां बच्चा पैदा होता है, उसके खाते खुल जाते हैं सरकार की ओर से, कई तरह के उसके खाते में बाय डिफॉल्ट, अमीर परिवार में हो गरीब परिवार में हो, बाय डिफॉल्ट उसके परिवार में पैसा आना शुरू हो जाता है। ये इसकी वेलफेयर स्कीम्स के लिए, ये फलाने के लिए, फलाने इतने उम्र का होगा, इतने उम्र का होगा उस वक्त के लिए। हम कहते हैं तो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी अगर कुछ बच्चों को दे दिया तो। बुजुर्गों के लिए ऐसे ही बहुत सारी कुल मिला के डेवलप्ड कंट्रीज के डेवलप होने का कारण ही यह है कि वो अपने सिटीजन्स में इन्वेस्ट करने में यकीन रखते हैं, और हमारी सरकार सिटीजन में इन्वेस्ट करने को कहती है। फ्री की रेवड़ियां ये बंद कर देनी चाहिए। स्कूल बंद कर दो सरकारी, अस्पताल बंद कर दो सरकारी, सब कुछ प्राइवेट कर दो, सब कुछ प्राइवेट हाथों में सौंप दो, फिर लोग लुटते रहें, मरते रहें, पिटते रहें, ना पढ़ पाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी योजनाएं बंद कर दो। आज कोई भी इंडेक्स उठा के देख लो देश में, दुनिया की, आप हेल्थ सेक्टर पे देख लो, आप एजुकेशन सेक्टर पे देख लो, वेलफेयर सेक्टर पे देख लो, हमारा देश दुनिया के देशों में सबसे नीचे की लिस्ट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारें सोचती हैं दोस्तों के लोन माफ कर दो, करोड़ों के माफ कर दो, लाखों के माफ कर दो, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा दिया तो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी, ये यकीन करते हैं। आज देश में भी देख लें, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, थोड़ा देख लें, देश की इकोनॉमी तो उनके हाथ में है ही, उनके पूरा डेटा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो फ्री की योजनाओं को, लोगों को, वेलफेयर स्कीम्स को रेवड़ी कहती है, उनकी सारी सरकारें घाटे में चल रही हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार का फिजिकल डेफिसिट 81,000 करोड़ रुपीस का है, गुजरात का 36,000 करोड़ रुपीस का है, मध्य प्रदेश का 49,000 करोड़ रुपीस का है। ये पैसा जाता कहां है? लोग तो टैक्स दे रहे हैं, ये कह रहे हैं हम टैक्स के लोगों से डेवलप करेंगे। आपने तो टैक्स के लोगों से, जनता के टैक्स के पैसे से डेवलप करेंगे, लेकिन हुआ क्या? जनता के टैक्स के पैसे को पता नहीं कहां ले गए, दोस्तवाद में, दोस्तों के लोन माफ करने में ले गए, वहां तो सरकारी घाटे में चल रही हैं। और पिछले 7 साल से लगातार दिल्ली की सरकार है जो लोगों के वेलफेयर के लिए सारा इन्वेस्टमेंट करती है, एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रही है, हेल्थ में इन्वेस्ट कर रही है, फ्री बस, बिजली, पानी, इन सब में इन्वेस्ट कर रही है। और उसका नतीजा है, लोगों में इन्वेस्ट करने का नतीजा है कि लोगों के सरकार भी फायदे में चल रही है, रेवेन्यू सरप्लस चलती है। खुद सीएजी मानता है इस बात को। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मजाक बनाया जा रहा है भारत में गरीब आदमी का, गरीबी। So there you have it. This is perhaps a perfect time to go back to Vijay Sardana. Vijay Sardana ji, you just heard what Aam Aadmi Party Sanjay Singh has said. How would you like to respond to him? He says it's our job to provide things like free electricity, but the centre is the one looting people. I think Aam Aadmi Party should read their own economic survey and CAG report to tell the truth to the people. They are selectively misleading the people, and that's what I'm requesting all the audience, download the document and read it. They are saying, let me quote just to respond what he was saying. They are saying that we are giving free education and our quality of education is very good. Ma'am, the fact is when this Aam Aadmi Party came to power, in Delhi the primary and middle school were 3,739 and now it has reduced to 3,508, and the worst situation is now Aam Aadmi Party even don't publish the data. This is the fact as per economic survey of Delhi government. Similarly, enrollment has gone down. They are talking about healthcare. Aam Aadmi Party came to power. There were 95 hospitals in Delhi. They have reduced to 88. Bed per 1,000 population, it was 288. It was as high as 2.96. It has reduced to 2.86. So where is the investment going? And they are talking of surplus economy of Delhi. I think they should, Congress should take credit of that. I don't know why Congress pravaktas are silent. In 2014-15, Delhi's revenue surplus was 6,080 crores, which is now reduced to 1,450 crores in 21-22. So Aam Aadmi Party actually has looted Delhi, not added profit to Delhi. Sheila Dikshit was more profitable CM to Delhi than what Arvind Kejriwal is claiming. It is all
Economic Survey of Delhi State, both are published documents. Oh, that's my very way of looking, interesting. what we have to do is that my request to all the media is that please read the document. Now coming to Punjab, which is another very, and in Delhi, interesting part, Delhi budget, you are talking of what is freebie. Yes. Electricity subsidy will be given to lawyers' chambers practicing in courts. Are you saying lawyers deserve freebies in this country? And that too practicing lawyer? This is again a statement of Aam Aadmi Party. What they are trying to do? They are trying to bribe the lawyers. They are trying to bribe every community, read their document and their manifesto. They systematically bribe students, women, slum dweller, unauthorized colonies, old age pension, One quick everyone. question. So, for example, in the latest example which is being cited by the opposition is Yogi Sarkar giving free bus rides to women. Does that fall under the freebie category? Because most women may be also able to pay for their bus rides. Is that Absolutely. a freebie? As per Absolutely, definition. it is freebie. Absolutely. Those who deserve and those who see, Delhi has a 4 lakh rupees 4 lakh per capita income, Delhi, which is 3 times of the average national average of India. Now you are saying that a student who is giving 2 lakh rupees or 3 lakh rupees in MBA college or engineering college This or is in medical UP. This is in UP, but that's a very important point that you have made, the distinction between what a welfare state must do versus what a freebie is. Thank you so much, Mr. Sardana, for explaining that for our viewers. We are definitely going to go back to the economic surveys to look into what has been promised versus what is a freebie. But with that, let's move on in the bulletin now, and this is another one of our top 4